بڑا سنجیدہ وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی چند ایک باتیں سیکھیں۔ خدا کے کلام کی باتوں کو جب ہم غور سے سنتے ہیں تو پھر ہم برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک کردار سے ہم سیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے، اور اس کردار سے ہم آج بھی کچھ سیکھیں گے۔ وہ کردار ہے کرنیلیس کا۔ اعمال کے 10ویں باب میں یہ سٹوری ہے ایک شخص کے بارے میں جس کے لیے خدا کے فرشتے نے آسمان پر آ کر اس کو پیغام دیا اور کہا کہ تیری دعائیں اور تیری خرائط خدا کے حضور پہنچی ہے۔ پھر ہم اس کے لیے اس سٹوری میں سیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ سے یہ بھی بتایا کہ تیری دعائیں اور تیری خرائط خدا کے حضور پہنچی ہے۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر اپنے لیے پترس کو، جو شمعون بھی ہے، پترس بھی دو نام ہے اس کو بلوا لے، اور یہ بھی کہ وہ تیرے لیے کلام کرے گا، اور یہ بھی کہ وہ کس جگہ پر ہے یہ بھی بتا دیا کہ وہ شمعون دباغ کے گھر میں ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کا گھر سمندر کے کنارہ پر ہے، تاکہ کسی طرح کی الجھن پیدا نہ ہو۔ اب غور سے سنیے اس کی وجہ کیا تھی۔ خدا اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اپنے فرشتہ کو کیوں بھیج رہا تھا، اور پھر پترس کو رویا میں خدا نے بتایا، کلام کیا کہ تو اس کے ساتھ بے کھٹ کے چلا جا، جبکہ وہ غیر قوموں کے ساتھ جاتے نہیں تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، ان کو کلام نہیں سناتے تھے۔ اب خدا نے ایک رویا کے ذریعہ سے اس پر اپنا بھید کھولا۔ ان ساری باتوں کی جو وجہ ہے وہ ہے اس کا اچھا کردار جو خدا کو پسند آ گیا۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے، کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ پھر لکھا ہے، اور یہودیوں کو بہت خراط دیتا اور ہر وقت دعا کرتا تھا۔ اس وجہ سے خدا نے آسمان پر سے فرشتہ کو بھیجا، اور خدا کے فرشتہ نے اس سے کلام کیا اور اس سے بتایا کہ تیری دعائیں اور تیری خرائط تو خدا کے حضور پہنچ گئی ہے، اب تجھے یسوع مسیح کی نجات کی ضرورت ہے۔ تجھے پترس نام ایک شخص ہے، وہ تجھے کلام دے گا، اور اس کے کلام کے ذریعہ سے تو نجات حاصل کرے گا۔ آمین۔ اس کی جو باتیں جو بائبل میں لکھی ہیں کہ وہ دیندار تھا، اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خراط دیتا تھا۔ پھر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہر وقت دعا کرتا رہتا تھا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں،
बहुत सारे मजमून इसमें से निकलते हैं जिनसे हम खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। लेकिन आज एक बात पर गौर करेंगे। अपने घराने समेत खुदा से डरता था। अब ये जो बात है घराने समेत खुदा से डरता था, इसको भी दो हिस्सों में करेंगे। एक डरता था और दूसरा अपने घराने समेत डरता था। ये अकेला नहीं डरता था, बल्कि इसका सारा घराना खुदा से डरता था। अगले मजमून में हम खुदा से घराने समेत डरने का सीखेंगे। आज सिर्फ यही कि खुदा से डरता था। खुदा से डरने के मानी बाइबल में है, यह खुदा तरसी के मानी है। जहां पर लिखा होता है खुदा से डरता था, उसका दूसरा मतलब है खुदा तरस था। अगर आप इसी चैप्टर में 22वीं आयत भी पढ़ें, अमाल के 10वें बाब की 22वीं आयत। उन्होंने कहा, कर्नेलियस सुबहदार जो रास्तबाज और खुदातरस आदमी और जो रास्तबाज नौकरों ने कहा, कर्नेलियस जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी था। जहां पर लिखा है ना खुदा से डरता था, यहां पर आया खुदा तरस था। और बाइबल में बहुत सारे और भी वाले हैं जिनमें खुदा से डरने वाले के लिए खुदा तरस भी लफ्ज आया है। जैसे यूब के बारे में खुदा तरस आया है, आगे जाके मैं उसकी भी बात करूंगा। खुदा तरस होना या खुदा से डरना यह कोई आम बात नहीं है। इसी की वजह से, ऐसे शख्स की वजह से आसमान मुतहरक होता है और खुदा अपने फरिश्तों को भेज देता है। आज बहुत मसला है, लोग खुदा की इबादत तो करते हैं, परस्तश भी करते हैं, चर्च की सारी रसूमात भी करते हैं, लेकिन खुदा से डरते नहीं हैं। खुदा से डरते नहीं हैं। चंद एक बातें इसके हवाले से सीखेंगे, खुदा से डरना क्या है और खुदा से डरने के मानी क्या है। इन बातों पर गौर करते हैं। खुदा से डरना या खुदा तरस होना। इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं। इब्राहिम खुदा से प्यार करता था, खुदा से हम कलाम हुआ करता था। खुदा ने उसे कहा, कामिल हो तो मैं तुझे बरकत दूंगा। फिर खुदा ने, जब वो सरनगू हुआ तो खुदा ने उसे बरकत दी। फिर एक वक्त आया कि खुदा आयश करता है। पैदाइश की किताब के 22वें बाब में, पैदाइश की किताब के 22वें चैप्टर में जब शुरू में पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और खुदा ने कहा कि अपना बेटा ले, जो तेरा इकलौता बेटा है, और उसे मोरिया के पहाड़ पर ले जा और मेरे लिए कुर्बानी कर। तो इब्राहिम अपने बेटे को अपने साथ लेकर चला गया और वहां पर जाकर कुर्बानी करने लगा। जब उसने अपने बेटे को बांधा और लकड़ियों पर रखा ताकि उसे कुर्बान करे, तो वहां पर खुदा ने उसके साथ कलाम किया
اور جو کلام خدا نے اس کے ساتھ کیا 12ویں آیت سے پڑھیے. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا خدا نے کہا اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ ان سے کچھ کر، اس سے کچھ نہ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے. اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے. آمین. خدا اپنے بھید کھولتا ہے، خدا اپنے مکاشفات کھولتا ہے جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں. ابراہیم کی نمایاں خوبی جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، جو خدا نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا، وہ یہ ہے کہ میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے. اور یہی خدا چاہتا تھا، یہی خدا سکھانا چاہتا تھا اس آزمائش کے ذریعہ سے. آج یہ ہمارے لیے نمایاں ایک سبق ہے. خدا نے اسے چیک کیا اور کہا کہ میں جان گیا ہوں تو خدا سے ڈرتا ہے. اور کرنیلیس بھی خدا سے ڈرتا تھا، اس کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے. اور خدا اپنے بھید ایسے لوگوں پر کھول دیتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. 25ویں زبور میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. زبور نمبر 25 اس کی 14ویں آیت. 25ویں زبور کی 14ویں آیت کیا لکھا ہے؟ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں. کون جانتے ہیں؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں. خدا اپنے بھید ان پر کھولتا ہے، خدا اپنے مکاشفات ان پر کھولتا ہے. خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور خدا ان سے باتیں کرتا ہے. صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ لکھا ہے راز ہے. یہ راز جو ہے نا، یہ سب سے نہیں کھولے جاتے، یہ اسپیشل دوستوں کے ساتھ کھولے جاتے ہیں. اپنے راز ان پر کھولتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. اور ایک اور شخص بڑا خوبصورت کردار ہمیں بائبل میں سے ملتا ہے، ایوب اس کا نام ہے. ایوب کے بارے میں خدا کہتا ہے، ایوب کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. یہ بھی بات نمایاں ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ بدی سے بھی دور رہتے ہیں. اسی لیے خدا ان کو پسند کرتا ہے. اس کے بارے میں، کرنیلیس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ خدا سے ڈرتا، بلکہ اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. یہ گھرانے سمیت کو اگلے مضمون میں اس کے بارے میں بات کروں گا. گھرانے سمیت ڈرنا. آج صرف ڈرنے کے بارے میں، خدا سے ڈرنے کی بلیسنگ، خدا سے ڈرنے کی برکت کیا ہے. خدا نے ایوب کے بارے میں کہا کہ کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے. جب اس پر مشکل آئی، اس کے دوست اسے کہنے لگے تو خدا ترس تھا، تجھے تو بھروسہ تھا کہ تو خدا ترس ہے، تو اس بات پر بڑا یقین. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دوستوں کو بھی پتا تھا یہ خدا پرست ہے، خدا ترس ہے اور خدا سے ڈرتا ہے. چوتھے باب میں، اسی کے چوتھے باب میں کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے. جب کبھی ریکارڈنگ ہو تو یہ بھی خیال رکھیں وہی پڑھے جس کے پاس مائک ہو، تو زیادہ اچھا ہوگا. پہلی آیت سے پڑھیے. تب تیمانی الیفز کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ دیکھ، بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا دوست تھا. اس نے کہا کہ میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں، ناراض ہو جائے گا بات سن کے؟ جی آگے پڑھیے. پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ پر رہا بھی نہیں جاتا، کچھ باتیں دل میں آتی ہیں، بولنا بھی پڑتا ہے.
देख तूने बहुतों को सिखाया देख तू टीचर रहा है, लोगों को टीच करता रहा है, लोगों को सिखाता रहा है, तूने बहुत सारे लोगों को सिखाया, और कमजोर हाथों को मजबूत किया। बहुत सारे लोगों को तूने पावर दी, ताकत दी, लोगों को मजबूत किया, तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला और तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला, और तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। और तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार भी किया। पर अब तो तुझी पर आ पड़ी। अब यहां पर वो कहता है कि तू सब कुछ करने वाला अब खुद मुसीबत में फंस गया है, अब तो तुझ पर आ पड़ी और तू बेदिल हुआ जाता है। और तू बेदिल हो रहा है। उसने तुझे छोड़ा और तू घबरा उठा। खुदा ने थोड़ा सा अपना हाथ पीछे किया और तू घबरा गया। क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? और तेरी खुदा तरसी क्या तेरा भरोसा नहीं था? तू इस पर यकीन करता था कि तू खुदा तरस है, खुदा से डरता है? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? हाँ, तेरी राहों की रास्ती, तेरी रास्तबाजी भी तेरी एक उम्मीद थी, वो चली गई। क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है? हाँ, वो कहते तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है। इसका मतलब था कि वो उससे कह रहा था, मतलब यह है कि उससे कह रहा था कि तू रास्तबाज नहीं है। तो अब कोई मसला बन गया तेरे अंदर, क्योंकि खुदा तरसों के साथ, खुदा से डरने वालों के साथ ऐसा होता ही नहीं है। ये उसके सामने बड़ी बात थी कि खुदा तरसों के साथ या खुदा से डरने वालों के साथ तो इस तरह का होना ही नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो तू मासूम नहीं है, तुझ में कोई गुनाह आया है। जी आगे पढ़िए। या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए? कभी ऐसा हुआ है कि रास्तबाजों के साथ इस तरह का हो? मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। हाँ, कहता है मुझे तो इस तरह से लगता है कि जो कोई गुनाह बोते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। अगर तेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब है कि कोई गुनाह अंदर आया है। मतलब ये उस पर इल्जाम लगा रहे थे। एक तो ये कि वो इसको समझते नहीं थे कि ये खुदा की आजमाइश है, और दूसरी बात यहाँ पर ये भी नजर आती है कि वो समझते थे कि खुदा तरसों के साथ या खुदा से डरने वालों के साथ तो कभी ऐसा होता ही नहीं। बात ये है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। खुदा उसके बारे में कहता है, खुदा उसके बारे में गवाही देता है, शैतान के सामने कहता है, जो इल्जाम लगाने वाला है, इल्जाम लगाता है सब पर, जो उसके सामने खुदा कह रहा है कि कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। इमसाल की किताब के 16वें बाब में 6 आयत में लिखा है। इमसाल 16वां बाब उसकी 6 आयत में लिखा है। जी पढ़िए। शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है। शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है, और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। खुदा का खौफ मानने वाले बदी नहीं करते। एक ही काम होता है, जो खुदा का खौफ मानते हैं, जो खुदा से डरते हैं, वो बदी नहीं करते। उन्होंने कहा तू क्योंकि तुझ में गुनाह आ गया है इसलिए तू मुसीबत में पड़ा है, लेकिन खुदा के भेद, खुदा के मुकाशफा से नावाकिफ थे। फिर हम इसके बारे में और भी चंद हवाले पढ़ेंगे जिनसे हम सीखते हैं कि खुदा से डरने की ब्लेसिंग क्या है। ऐसे ही तो नहीं खुदा ने अपने फरिश्ते को भेज दिया, जा कर्नेलियस को, वो सबके पास ऐसे तो नहीं भेज देता। उसके अंदर बड़ी खूबी थी, दीनदार था, अपने घराने समेत खुदा से डरता था, और यहूदियों को बहुत खरात देता था, और हर वक्त दुआ करता था। बाकी जो चीजें हैं, बाकी पहलू जो उन पर भी बात करेंगे। आज हम सिर्फ खुदा से डरता होने की ब्लेसिंग को ही सीखेंगे। फिर हम 34वें ज़बूर की 9वीं आयत पढ़ते हैं।
तो वहां पर भी इसकी बरकत, जो खुदा से डरते हैं उसकी नुमाया बरकत हमें नजर आती है। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, 34वां ज़बूर उसकी नामी आयत, खुदावन से डरो ए उसके मुकद्दसो, खुदावन से डरो ए उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं क्योंकि जो भी उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। उनको कुछ कमी ना होगी, उनको कुछ कमी ना होगी। फिर ज़बूर नंबर 103 उसकी 11वीं आयत भी पढ़ सकते हैं। ज़बूर नंबर 103 उसकी 11वीं आयत, 130वां ज़बूर उसकी 11वीं आयत, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जो खुदा से डरते हैं। आमीन। शफकत, शफकत के बारे में मैंने पहले भी बताया, शफकत बड़ा स्पेशल लफ्ज है और इसके मानी तो मोहब्बत, मेहरबानी, प्यार, दस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन शफकत लफ्ज नुमाया लफ्ज है जो सिर्फ बाप के लिए लगता है, बाप के साथ ही जुड़ता है। ये शफकत बाप के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। बाइबल में लिखा है शफकत, खुदा की शफकत उन पर कितनी ज्यादा, जो खुदा से डरते हैं कितनी ज्यादा। अगर को पूछे कितनी ज्यादा, तो आप उसकी हद इतनी बता सकते हैं जितनी बाइबल में लिखी है। कितनी लिखी है? जितना आसमान जमीन से बुलंद दरमियानी वक्फा, जितना आसमान और जमीन के दरमियान वक्फा है, इतना ही वो अपनी शफकत उन पर करता है जो उससे डरते हैं। आमीन। जो उससे डरते हैं, खुदा की शफकत का ढेर उन पर है, खुदा उन पर तरस खाता है। फिर आप इसी ज़बूर की 13वीं आयत भी पढ़ें, इसी 103 ज़बूर की 13वीं आयत भी पढ़ दें। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, इतना तरस, इतनी शफकत जितनी बाप अपने बेटों पर खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस ऐसे खाता है। ही खुदा, इतना खुदा उन पर तरस खाता है जो उससे डरते हैं। फिर 111वें ज़बूर की 5वीं आयत भी पढ़िए। 111वां ज़बूर उसकी 5वीं आयत भी पढ़ सकते हैं। क्या मिलता है खुदा से डरने का? वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। खुराक देता है, खाने के लिए खुराक मुहैया करता है उनको जो उससे डरते हैं। बाइबल में लिखा है बब्बर का बच्चा, और बब्बर जो शेर बब्बर जो है वो खुराक के लिए शिकार करता है। और आप चैनल में देखते हैं हर एक चीज पर वो अटैक करता है, अपने से बड़ी चीज पर भी अटैक कर देता है, अपने से बड़े जानवरों पर अटैक करता है, शिकारी है। और आपको पता मरता कैसे है, उसकी डेथ कैसे होती है बब्बर की? कलाम में लिखा है बूढ़ा होता है, उसके दांत टूट जाते हैं, फिर वो भूख से मर जाता है। शिकार नहीं कर सकता भूख की वजह से, जो सबका बादशाह है सब जानवरों का, और जिसको चाहे शिकार कर लेता है। बाइबल में लिखा है वो बुढ़ापे में जाके खुराक ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती, मर जाता है जब उसे शिकार नहीं मिलता, भूख की वजह से। और कलाम में लिखा है बब्बर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदा कहता है, खुदा का कलाम सिखाता है, खुदा से डरने वालों के लिए वो बुढ़ापे तक खुराक देता है।
खुराक मुहैया करता है, उनके खाने का अरेंज करता है, बुढ़ापे तक भी। साधक के बारे में लिखा है। क्या लिखा है साधक के बारे में? बुढ़े वेले भी मेवे देवेगा। खुदा उसको बुढ़ापे में भी बरकत देता है। फिर 115वें ज़बूर में 13वीं आयत भी पढ़िए। 115वें ज़बूर की 13वीं आयत। जो खुदावन से डरते हैं, जो खुदावन से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सब को बरकत देगा। उन सब को बरकत देगा, छोटों को भी बड़ों को भी। लेकिन किन के बारे में लिखा है? जो खुदा से डरते हैं, उनको बरकत देगा। फिर 145वें ज़बूर की 19वीं आयत भी पढ़िए। 145वें ज़बूर की 19वीं आयत भी पढ़िए। 145 45। जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, वो उनकी मुराद पूरी करेगा। खुदा उनकी मुरादें भी पूरी करता है। आज लोगों पर से बरकत उठी हुई है, लोग ब्लेस्ड नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि खुदा से नहीं डरते, खुदा से नहीं डरते, खुदा का खौफ नहीं है, खुदा का डर अंदर नहीं है। कुरनेलियस के बारे में पढ़ते हैं, गैर कौम से था। कुरनेलियस के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा के खादम उसको विजिट नहीं करते थे क्योंकि वो गैर कौम से था। शागिर्द उसे कलाम नहीं सुनाना चाहते थे, शागिर्द उसके घर में नहीं जाना चाहते थे और उसके साथ खाना भी नहीं खाना चाहते थे। एक बात मुझे अजीब सी लगती है, यहूदी भी गैर कौमों से नफरत करते थे, खरायत ले लेते थे, खरायत उससे भी ले लेते थे। लेकिन खुदा उसकी सुनता है। कुरनेलियस की बात खुदा सुनता है। खुदा उसकी खरात को यादगारी के दफ्तर में लिखता है और फिर खुदा अपने फरिश्ते को भेजता है कि उससे जाके बात करे और उसके दिल में शक ना हो कि खुदा कबूल करता भी कि नहीं करता। उसने कहा तेरी दुआएं और तेरी खरात खुदावंद के हुजूर पहुंच गई है। अब तुझे कलाम की जरूरत है, अब तुझे निजात की जरूरत है, पर ये लोग तेरे साथ कलाम नहीं करेंगे। फिर खुदा ने खुद उनके साथ कलाम किया, रोया थी। वजह क्या थी? इसकी वजह क्या थी? दीनदार और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। और क्या करता था? खरात बांटता था। और क्या करता था? हर वक्त दुआ में रहता था। ये सारी खूबियां बड़ी खूबियां हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता से आगे सीख